ਤੱਕਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਤੱਕਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜੋਤ ਨੂਰਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜੋਤ ਨੂਰਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜੋਤ ਨੂਰਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜੋਤ ਨੂਰਾਨੀ। ਸੋਹਣਾ ਮੁਕੜਾ ਚਾਲ ਰਵਾਨੀ, ਸੋਹਣਾ ਮੁਕੜਾ ਚਾਲ ਰਵਾਨੀ। ਸੋਹਣਾ ਮੁਕੜਾ ਚਾਲ ਰਵਾਨੀ, ਸੋਹਣਾ ਮੁਕੜਾ ਚਾਲ ਰਵਾਨੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਮੁਖੜਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ, ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ, ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰੇ। ਅੱਜ ਮਸਤੀ ਚ ਨੱਚਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਆਊ ਸਫਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਆਊ ਸਫਾਰੀ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਊ ਸਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਊ ਸਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਆਊ ਸਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਆਊ ਸਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਆਊ ਸਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਆਊ ਸਵਾਰੀ। ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਉਰਿਓ ਤਿਓ ਜਗਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸਾਲੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ, ਸਾਲੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਲੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ, ਸਾਲੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ। ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ, ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ। ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ, ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਨੱਚਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਦਰਦ ਨ ਰੱਖਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ
ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਵਰਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮੀਂਹ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਉਹ ਫੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸੇਵਕਾ ਬੀਬੀ ਮੰਗਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਮੰਗਲਾ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮੰਗਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸੋਹੰਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਰੌਲੇ ਖਤਮ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਕੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬੀਬੀ ਮੰਗਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਮੰਗਲਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਲਿਆ ਉਹ ਭੜੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਭੜੋਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭੜੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਤੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਵੰਡੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਸੇਰੀ ਬੱਟੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਬੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨਾਜ ਤੋਲ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਭੜੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਵਿਆਕੁਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਰਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਈਆ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬੇਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਈਆ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮਕ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਈਆ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
पर गुरु प्यारिओ जिन्हां दे अंदर प्रेम है वो अज भी पुकारते हैं। आओ एक बार आपां भी पुकारिए। अज मेरे सतगुरु पातशाह जी साडे ते भी कृपा कर, सानू भी दर्शन दे। असी लोचदे दर्श गुरु तेरा, तुसी कीते लाइयां तेरियां। असी लोचदे दर्श गुरु तेरा, तुसी कीते लाइयां तेरियां। असी लोचदे दर्श गुरु तेरा, सब लोचदे लाइयां तेरियां। असी लोचदे दर्श गुरु तेरा, तुसी कीते लाइयां तेरियां। कोई दिसे ना सहारा देवे जेड़ा, तुसी कीते लाइयां तेरियां। असी लोचदे दर्श गुरु तेरा, तुसी कीते लाइयां तेरियां। असी लोचदे दर्श गुरु तेरा, तुसी कीते लाइयां तेरियां। असी लोचदे दर्श गुरु तेरा, तुसी कीते लाइयां तेरियां। दर्श दिखावो ने करो होर देर ना, दर्श दिखावो ने करो होर देर ना। दर्श दिखावो ने करो होर देर ना, दर्श दिखावो ने करो होर देर ना। भगतां दे नाल होने करो हेर फेर ना, भगतां दे नाल होने करो हेर फेर ना। भगतां दे नाल होने करो हेर फेर। टुट जावे ना भरोसा किते मेरा, तुसी कीते लाइयां तेरियां। असी लोचदे दर्श गुरु तेरा, तुसी कीते लाइयां तेरियां। असी लोचदे दर्श गुरु तेरा, तुसी कीते लाइयां तेरियां। तुसां दा दीदार सानू रब दा दीदार जी, तुसां दा दीदार सानू रब दा दीदार जी। तुसां दा दीदार सानू रब दा दीदार जी, तुसां दा दीदार सानू रब दा दीदार जी। सच्चे दिलों तुसां नाल हो गया प्यार जी, सच्चे दिलों तुसां नाल हो गया प्यार जी। सच्चे दिलों तुसां नाल हो गया प्यार जी, सच्चे दिलों तुसां नाल हो गया प्यार। होई तारी दी डंडा ले आन केड़ा, तुसी कीते लाइयां तेरियां। असी लोचदे दर्श गुरु तेरा, तुसी कीते लाइयां तेरियां। असी लोचदे दर्श गुरु तेरा, तुसी कीते लाइयां तेरियां। गुरु अते भगतां दा रिश्ता प्यारा है, गुरु अते भगतां दा रिश्ता प्यारा है। गुरु अते भगतां दा रिश्ता प्यारा है, गुरु अते भगतां दा रिश्ता प्यारा है। भगतां नू गुरु जी दा इक ही सहारा है, भगतां नू गुरु जी दा इक ही सहारा है।
दर्श गुरु तेरा तुसी किते लाइयां मेरियां असी लोचदे दर्श गुरु तेरा तुसी किते लाइयां मेरियां मैनू लगता है मौसम ठंडा है तो तुसी भी ठंडे हो जाते आप गुरु महाराज के चरणा च आए हैं इत्थे तो जोश भर के ले जाना फिर इत्थे भी ठंडे हो गया बरखा दे करके आप ठंडे हो गए फिर तो माड़ी गल है थोड़ा जिहा गर्म होवो क्योंकि तुहाडी आवाज़ दे नाल ही महाराज ने छेती प्रगट होना है जे तुसी इत्थे ही बैठे गए बस मूँह दे विच पिन्नियां पा के बैठिया रहियां फिर नहीं छेती सुनना इस करके कुछ दिल तो भी पुकारो कुछ जुबान तो भी पुकारो क्योंकि जुबान अंदर दी चाबी है जे जुबान दे नाल पुकारांगे तो दिल भी तू ही तू बोलेगा इस करके गुरु प्यारियो जदों बीबी मंगलां दे घर सतगुरु पातशाह बैठे तो उस समय फिर की होया कहते कि सतगुरु पातशाह जी संसार में उतार रहे हैं पर उस समय राजा बेन सिंह आया और जदों देखा सतगुरु ने उस समय पावन शब्द उच्चारण कर रहा कि बेगमपुरा शहर को नाओ दूख अंदोह नहीं तह पाओ उस शब्द को सुनदियां सार ही तो राजे दे मन दे विच ये गल आई कि किस राज की गल कर रहे हैं ये मेरे राज परिवर्तन की गल कर रहे हैं तो गुरु प्यारियो एक गल तुसीं आम देख लियो राजा होवे इलाके का MC होवे MLA होवे वो थोड़ा जिहा कन्ना का कच्चा ही होंदा किदां क्योंकि लोकी उहदे कोल फिर चापलूस पहलां तो जदों तक उहदे कोल ओह अहुदा नहीं हुंदा उदों तक तो हुंदे शुभ चिंतक उदों तक तो सारियां दी गल मनदा पर जदों अहुदा आ जांदा फिर चापलूस भी इकट्ठे होना पैंदे कहंदे कि साडा काम होवे साडा काम होवे उस समय वो जिहड़े चापलूसां दी चापलूसी दे विच आके जिहड़े बादशाह ये लोग है ये कन्ना दे कच्चे हो जाते फिर की हुंदा कहंदे कि उस समय वो राजे मगर लग गए अपने चापलूसां दे तां सतगुरु पातशाह जी ने उन्होंने जेल दे विच बंद कर दिता है क्योंकि एक गल मैं तुहानूं इत्थे विशेष रूप से कहनी चाहांगा कि सतगुरु रविदास महाराज जी अपने जीवन दे विच 2 बार जेल दे विच गए एक जिस जगह पे तुसी इत्थे बैठे हो ये स्थान है दूसरा स्थान है जय गुरुदेव दूसरा स्थान है दिल्ली दे अंदर जिथे सिकंदर लोधी सतगुरु रविदास महाराज जी ने जेल दे विच पाया 2 बादशाहां ने सतगुरु रविदास महाराज जी ने जेल च बंद किया है पर दोनों नूं ही सतगुरु ने ऐसे कौतक दिखाए कि दोनों सतगुरु रविदास जी के पावन सेवक बन गए और गुरु प्यारियो राजा बेन सिंह इसी जगह से कहते जदों उन्होंने पता लगा उन्होंने सजा दे दी कि सतगुरु रविदास महाराज जी इन्होंने सजा की दी कि तुसी अनाज जिहड़ा है वो पी पी के बने आटा बना के बने
पर इधर उनकी जानन के निरंकार का साकार रूप है मेरे सतगुरु रविदास पातशाह। क्योंकि घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत, वो सतगुरु रविदास पातशाह कलयुग दे अवतारी जिन्हां ने सारी दुनिया तार दी। एक बादशाह तो उन्होंने अगे है ही कुछ नहीं। 52 बादशाह जिहड़े है सतगुरु रविदास जी के शरणागत होए। गुरु प्यारिओ 7 रानियां ने सतगुरु रविदास महाराज जी तो नामदान दिया। और उस समय कहते कि जिस समय सतगुरु रविदास महाराज जी ने राजा सांगा के घर दे विच राणी झाली के कहे अनुसार उस जग दे विच गए तो जिन्ने भी विपर सी कहते कि सारे कहते सी कि साडे नाल जमार बैठ के भोजन नहीं छक सकता है। तो उत्थे उन्होंने एक कौतक रचाया कि जिते विपर कहते कि सब के मद अचरज भयो तमाशा, जेते विपर ते रविदासा। वो जिन्ने भी ब्राह्मण बैठे सन उन्ने ही रविदास महाराज उन्होंने नाल नजर आए। इतिहास में लिखा है कि उस दिन गुरु रविदास जी के कोल 20,000 सेवकों ने नामदान किया। एडे वड्डे महापुरुष जगत गुरु रविदास पातशाह असीं उन्हां नूं छड्ड के दर दर फिरदे हां तां माड़े कर्म किन्हां दे है? साडे है, उन्हां दे नहीं। वो तो किरपा कर रहे पर असीं नहीं किरपा लै। गुरु प्यारिओ वो किरपा लैनी है तां तुहानूं भी मन एकाग्र करना है। इसलिए आपने वो किरपा मंगनी है। सतगुरु रविदास पातशाह जी कहते कि उस जगह के उत्ते बैठे बंदी खाने च बैठ के निरंकार का ध्यान करते हैं और वो चक्की अपने आप चलन लग पई और आटा पी पी होके बाहर आने लग पिया। जदों बाहर आने लग पिया तो उस समय की होया कि अहलकार जाके राजे ने दस दे कि चक्की अपने आप ही चल रही है। तो गुरु प्यारिओ हुण राजा भी सोच रहे कि किस तरह हो सकता है, जाके देखिए। जदों आए देखने वास्ते तो सामने सतगुरु पातशाह बंदगी च बैठे है और चक्की अपने आप चल रही है। सतगुरु पातशाह जी का एक कौतक देख के वो राजा बड़ा हैरान होया। कहते कि महाराज जी के चरणों के जाके डिग पिया और संजोगवश मीरा भी इस धरती उत्ते उस समय आई। और गुरु प्यारिओ सतगुरु रविदास महाराज जी के नाल इस संसार के उत्ते इस जगह के उत्ते 4 साल 11 महीने शायद 2 महीने 11 दिन या 11 महीने 2 दिन इस जगह के उत्ते कटे। और इसलिए ये सतगुरां की पावन कृपा है जिस जगह ते तुसीं बैठे हो। इन्हां धरत दे उत्ते उस सतगुरां दे चरण मुबारक पए हुए है। ओए ते धूड़ी भी कर्मां वाली है। गुरु प्यारिओ असीं इस धूड़ी तो अगर जे बेमुख हो के इत्थे गल्लां करके चले गए या लंगर तक ही रह गए तो फिर साडी माड़ी किस्मत है। इसलिए इस जगह के उत्ते आपां बैठे हाँ तो आपां नूं इत्थे बैठ के सतगुरु रविदास महाराज जी का वो अनुभव वो आनंद लेना चाहिए। तुसीं सोचो ये जिहड़ी चरणां दी धूड़ी तुहाडे मुकद्दर दे उत्ते आउंदी तुहाडे मस्तक ते पैंदी तां तुहाडे मस्तक जिहड़े है ये लिखियो लेख जिहड़े बदल जांदे, ये कर्म जिहड़े बदल जांदे है। गुरु प्यारिओ साडी शरधा होनी चाहिए, साडा प्रेम होना चाहिए। पर असी लोग कही जाते दोष दिंदे। असी कुछ दिन पहला हुणे या 19 तरीक नूं इटली तो आए साडे वीर जो कांची टीवी की टीम है, ये जो तुहाडा प्रोग्राम है ये सारा ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये प्रोग्राम कांची टीवी ते इंग्लैंड तो चलना है। गुरु प्यारिओ सारी दुनिया देखती है क्योंकि असीं उत्थे 1 महीना सेवा करके आए और कांची टीम ने देखो असीं इटली दे विच बैठे उत्थों प्रचार कर रहे थे। कांची टीवी की टीम ने उत्थों प्रचार इंग्लैंड विच सुनिया और इंग्लैंड तो विशेष तौर पर सानू गोल्ड मैडल देने वास्ते आए। कीमत इस चीज़ की है कि उन्होंने उस काम करने के लिए कितना पैसा खर्चा, कितनियां टिकटां लईआं, कितने लोग आए, सब तो वड्डी अहमियत रखनी। और जिहड़ा संगत दे विच सन्मान है चाहे वो 1 रुपए का ते चाहे है 10 रुपए का, वो सब बराबर है। पर मैं धन्नवाद करता हाँ कांची टीवी की समूह टीम का जिन्हों ने साडी दलितां की आवाज़ नूं जन जन तक पहुँचाया है। इस समय 57 कंट्रियां जिहड़ियां इत्थे तां असीं कुछ इकट्ठे ही नहीं हुंदे, बाहर जाके पता लगता कि चमार है की चीज़ है। बाहर जाके यूरोप पता लगता है कि चमारां दा एकता किवें है।
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵਚੈਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਾ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਹ ਕਮੇਟੀ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਏਦਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਏਕੇ ਦੇ ਗੁਣ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਣੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। इधर सतगुरु रविदास पातशाह जी अपने नाल एकाग्रता करके उस ब्रह्मांड के नाल जुड़े हुए, तो उधर राजा बेन भी सतगुरां दे चरणों दे विच आ गया, आके बेनती करता है, अरदास करता है, कहता मेरे को भुल हो गई। तो गुरु प्यारिओ, कदे तुसीं देखिआ कि 1509 तो लैके 1519 तो लैके अज तक इस धरती के उत्ते कदे भी वो नहीं होया कि मतलब जिस तरह अनाज की कमी नहीं आई, अकाल नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? क्योंकि 1519 दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस धरती के उत्ते जिहड़ा ये अनाज बीजा है वो भड़ोले दे विचों लैके वो 48 कोह तक सत्या गया। उहदे कारण अज भी पूरे संसार दे विच दुआबे दे विच हरियाली है। 1519 तो बाद विच कदे भी इस जगह के उत्ते अकाल ही नहीं पिया। जगत वो अकाल नहीं पिया, असीं वो अनाज खा रहे हैं जिहड़ा मेरे सतगुरु रविदास जी ने सानूं दिता। फिर जदों साडे लई वो दे रहे जय सानूं वो अनाज देने वाले है, फिर असीं क्यों भटकदे हां? गुरु प्यारिओ, साडे अंदर वो प्रेम नहीं है। आओ आपां सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों दे विच बेनती करिए, अरदासां करिए कि पातशाह कृपा कर। तेरे परने पंडारे गुरु रविदास जी, खैर पादो बंदगी दी। तेरे परने पंडारे गुरु रविदास जी, खैर पादो बंदगी दी। तेरे परने पंडारे गुरु रविदास जी, खैर पादो बंदगी दी। तेरे परने पंडारे गुरु रविदास जी, खैर पादो बंदगी दी। खैर पादो जी बंदगी दी, मैनू खैर पादो जी बंदगी दी। सबनू खैर पादो जी बंदगी दी, सबनू खैर पादो जी बंदगी दी। तेरे परने पंडारे गुरु रविदास जी, खैर पादो बंदगी दी। तेरे परने पंडारे गुरु रविदास जी, खैर पादो बंदगी दी। तेरे परने पंडारे गुरु रविदास जी, खैर पादो बंदगी दी। हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार कती जय। हम सर दीन दयाल तुम सर अब पटियाल की जय। हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार कती जय। हम सर दीन दयाल तुम सर अब पटियाल की जय। बचनी तो मोर न तमाने जन कौ पूरन की है। बचनी तो मोर न तमाने जन कौ पूरन की जय।
बंदगी बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेके 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 कह रविदास आस लग जीवा तेरे पै दर्शन देखे रविदास आस लग जीवो चिर पै दर्शन देखे कह रविदास आस लग जीवा तेरे पै दर्शन देखे रविदास आस लग जीवो चिर पै दर्शन देखे कहर बाजो जी बंदगी सब खैर बाजो जी बंदगी सब कहर बाजो जी बंदगी तेरे भरे ने भंडारे गुरु रविदास जी कहर बाजो बंदगी तेरे भरे ने भंडारे गुरु रविदास जी खैर बाजो बंदगी तेरे भरे ने भंडारे गुरु रविदास कहर बाजो बंदगी भरे ने भंडारे गुरु रविदास जी खैर बाजो बंदगी जी कहर बाजो बंदगी जी कहर बाजो गुरु प्यारो ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਡਗਮਗਾਏ ਨਾ ਜਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕਠਿਨਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਬਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਆਦਿ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਵਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਦਿ ਔਰ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੂਈ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਸਿੱਟੋ ਪਰੇ ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਵਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਆਏ ਜੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਲਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਂਡਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ
और इस धरती के उत्ते परमात्मा इसी करके कहा जाता है पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। हुण ये धरती सबकी मां है तो कलश का दूसरा रूप धरती है। दूसरे पासे आंदा पिता का नाम संतोख दास। बाणी कह रही है धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जनसू। जिहदे मन दे विच संतोख ही है नहीं उत्थे रब किद्दां प्रगट हो जाए। जिहदा मन कदे किसी पासे भटकदा कदे इधर नठदा कदे उधर नठदा वो किद्दां प्रगट कर लऊ। संतोख दास जी के घर दे विच सतगुरु रविदास महाराज प्रगट होए और जिन्हां दे अंदर अज भी संतोख है वो अपने हृदय तो दर्शन कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर सर्वभूताना हृदय जना तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माज। कहते कि मैं हर एक दे हृदय विच वसदा हाँ। मैनू देखना है तो अपनी पंज कर्म इंद्रियां पंज ज्ञान इंद्रियां नूं समेट के अंदर वल नूं कर लै। मैं तेनों तेरे मन दे विचों ही दर्शन दे देवां। और सतगुरु रविदास महाराज जी के दादा जी का नाम है कालू राम और जस्सल इन्हां दा गोत है ते दादी जी का नाम है लखपति सरोई। सतगुरु रविदास महाराज जी की भूआ का नाम है धन्नो जी और सतगुरु रविदास महाराज जी के फुफड़ का नाम है करमदास। सतगुरु रविदास महाराज जी की भूआ की लड़की का नाम है करमी जी और सतगुरु रविदास महाराज जी के भूआ के लड़के का नाम है संत रेन जी जिन्हां का जिक्र भाई बाले की साखी के विच आउंदा है। सतगुरु रविदास महाराज जी की शादी पिंड मिर्जापुर के विच धर्मो चमार की लड़की के नाल हुई। लोना जी सतगुरु रविदास महाराज जी की धर्म पत्नी का नाम है और सतगुरु रविदास महाराज जी के एक पुत्र होया जिन्हां का नाम है संत विजय दास जी। सतगुरु रविदास महाराज जी तो बाद में सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन गद्दी की सेवा जी है वो संत रेन जी ने की और संत रेन जी तो मगरों वो गद्दी की सेवा संत विजय दास जी को मिली जिहड़े सतगुरु रविदास महाराज जी के पुत्र सन। सतगुरु विजय दास महाराज जी ने बैकुंठ नाम एक गद्दी चलाई जिहड़ी गद्दी अज भी तिरुपति बाला जी के मंदिर दे विच चल रही है। वो साडे चमारां दी गद्दी है। सतगुरु रविदास महाराज जी की उदासी संप्रदा की गद्दी है। उस गद्दी की सेवा अजकल पंडित लोग कर रहे हैं। गुरु प्यारिओ एक मैं तुहानूं होर दसां असीं जदों कथा उत्थे कीती ना इटली दे विच तां उसे समय इंग्लैंड तो दो बंदे टिकटां लैके इत्थे आ गए तां वो सीधे तिरुपति बाला जी नूं कल पहुँच गए। उन्होंने जाके उत्थे खोज करके मैनू फोन कर दिता ज्ञानी जी कहते जी तुसीं गल उत्थे कह के आए हो 16 ने सच्ची है भी इसे नगर के नाल एक विजय नगर भी वसिया होया है। सतगुरु रविदास महाराज जी के पुत्र के नाम के उत्ते विजय नगर वसिया होया है। हुण असीं यही खोज कर लगे कि वाकई ये सारा कुछ उहदे नाल है। देखो कि जे किते कोई गल है तो खोज करने वाली नहीं तो ये जिन्हां दी तमन्ना है इच्छा है कि असीं कुछ जानिए जिन्हां की इच्छा है असी कुछ प्राप्त करिए। इतिहास बहुत है छुपिया पिया है। गुरु रविदास महाराज जी महाराज गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर ऐसे दस्तगीर हैं जिन्हां दे अगे वड्डी वड्डी कायनात जिहड़ी झुकदी है और असी उन्हां महापुरुषों तो उन्हां दी कृपा तो दूर है। क्यों? क्योंकि असी मन मत मगर चलते हैं गुरु मत मगर नहीं चलते। इसलिए गुरु मत मगर चलना है। कहते गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह। जिहड़ा गुरु के घर दे विच रहेगा वो गुरु की गल भी मनेगा। बचनी तोर मोर मन माने जिनको पूर्ण दीजे। पूर्णता तद ही मिलनी है जदों बचन कमाने हैं नहीं तो रौला जिन्ना मर्जी पा लीए कुछ भी हथ पल्ले नहीं आना। उन्होंने बचन कमाओ क्योंकि जे तुसी सतगुरु रविदास जी के बचनों के उत्ते परिपक्व हो गए तो सतगुरु रविदास पातशाह तुहानूं घर आके दर्शन देणगे बाहर आउण दी लोड़ नहीं। सतगुरु रविदास महाराज की जय। वो सतगुरु रविदास पातशाह तुहाडे लई तड़फदे है क्योंकि उन्होंने सीना चीरिया किना लई तुहाडे लई। वो गंगा ते पत्थर तराए किना लई तुहाडे लई। ते गुरु प्यारिओ उल्टी गंगा बहाई किना लई तुहाडे लई तां जो कि तुसीं सन्मानयोग जिंदगी जी सको। पर अज असीं आपस विच ही भटके फिरदे तो मूर्खता किना दी साडी है क्योंकि असी अपने गुरु नूं छड्ड दिता। आम देख रहे हो जिन्हां दी कोल कोई चीज़ हुंदी है ना
ਉਹਦੀ कदर नहीं करते। मेरी जिंदगी दे विच साडी माता जी गुजर गए और मेरी दादी ने मैनू पालिया। हुण गुरु प्यारिओ, जदों किते भी कोई माँ की गल आउंदी है तो साडा मन अपने आप ही पिघल जाता है, क्योंकि सानू माँ का वो प्रेम जिहड़ा सी दादी कोलों मिलिया, माँ दे कोलों नहीं मिलिया। इसी तरह जिन्हां दे कोल मावा है वो मावा की कदर नहीं करते, पर जिन्हां दे कोल नहीं है वो तड़पते कि माँ का प्यार। गुरु प्यारिओ, वो तुहाडे कोल तुहाडी कौम दा रहबर है, पर फिर भी तुसी कदर नहीं करते, दूसरियां जगह ते जाके भटकदे फिरदे हो। एक गल याद रखियो, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, जे एक दर दे होए रहो ते तुहानू दुर दुर कहे ना करे। जगत गुरु रविदास महाराज जी। गुरु प्यारिओ, ओ असी अपने आप को खुद दुरकारा पवा रहे हैं, क्योंकि असी दूजियां दे दरां ते घूम रहे हैं। अज जे असी सतगुरु रविदास महाराज जी ने सानू शिक्षा दी, कित्थे टिकना है? कहंदे हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाकै। वो सच बोल गए कि एक गल याद रखियो, जिहड़ा हर रूपी हीरे नाल जुड़ेगा वही पार होएगा, बाकी सारे भटकते रह जाएंगे। गुरु प्यारिओ, हुण भटकदे असी। एक छोटी जी उदाहरण दिंदे। एक बार एक इंसान पहाड़ तो थले डिग पिया, पैर फिसल गया, बेचारा मेरे वर्गा सी, मन किते टिकिया ही नहीं, क्योंकि मन होता ही टिकना जिन्हें बंदगी करनी है। तो फिसलदा ही कहंदा, हे बाबा बालकनाथ किरपा कर, मैनू रखिया कर। जदों ओहदा जन दूसरा साह आ गया, उन्हें सोचा कि हजे नहीं, जन फिर दोबारा आवाज मार दी, कहता हे लख दाता पीर जी किरपा करो, मेरी रखिया करो। जानू तीसरा साह, फिर बोलिया कि हजे तो पहुंचिया नहीं, कहते तीसरा, हे माता शेरां वाली मेरी रखिया कर, मैं डिग चला। तो इन्ने नूं धड़म मैं करदा थले, हड्डियां सारियां चकनाचूर। परमात्मा के दरबार दे विच जदों दी रूह पहुंची तो जाके पुछदा है, कहंदा महाराज मैं तो बड़ा जा तुहानूं याद कीता, तुहानूं आवाज़ां मारियां, तुसीं आए ही नहीं। कहंदे भी किहनूं याद कीता? कहंदा जी पहलां मैं बाबा जी नूं याद कीता, बुला लिया बाबा जी नूं, क्योंकि जिहड़े देवी देवते कोई 2 कला संपूर्ण है, कोई 4 कला संपूर्ण है, कोई 6 कला संपूर्ण है, हर एक दी हद है और वो हद तो बाहर नहीं जा सकते। कबीर साहब महाराज जी ने कहा ना, तुम कहियत हो आद भवानी, मुक्ति की बरिया कहा मुँह छुपानी। वो कहते कि जदों मुक्ति का वेला आउंदा तो माता जी कित्थे चले जाते? माता जी कोलों पूछो, पर उसकी हद है कि तुसीं वो इतना ही वरदान दे सकती हो, तो ज़्यादा नहीं दे सकते। हर एक इंसान की एक क्वालिटी है। पिंड के सरपंच के कोल उहदा दायरा वखरा है और MLA कोल वखरा है, MC कोल वखरा है। हुण जे तुसीं भाई सिद्धे पावर हाउस नाल जुड़ना तो दायरा वड्डा है, इस करके हुण ये जिन्ने भी आ उसे दायरे में आ जाते हैं। कहते कि हाँ भी बाबा जी तुसीं नहीं बुलाया, उन्होंने बचाया नहीं जाके। वो कहते महाराज जदों मैंने आवाज़ मारी, मैं उठ के अज मोर ते चढ़ नहीं लगा सी, जानू कहते इन्होंने आवाज़ मार दी पीरां नूं, हाँ बई लख दाता जी तुसीं नहीं बुलाए, तुसीं पहुंचे क्यों नहीं? इन्होंने तुहाडी रखिया करने लई तुहानूं बुलाया, तुहाडी ड्यूटी लगी है। कहता महाराज मैं तो हजे घोड़े ते सवार हुंदा सी, जानू इन्हें शेरां वाली नूं बुला लिया। हुण जद तक माता नूं बुलाया गया, कहते भी तुसीं नहीं पहुंचे। कहते महाराज इन्हें मैनूं जदों बुलाया उदों तक तो इहदा घड़ा मुक्कू हो गया सी, मैं की कर सकदी, इहदा थल्ले डिगे पिया सी। हुण ये गल एक है कि जदों साडा मन एक जगह नहीं टिकदा उदों तक साडे नाल इदां ही होनी है। साडा सारियां दा यही हाल है, असीं एक जगह ते टिकदे ही नहीं। इस करके एक जगह ते टिको। वो किहड़े है? मेरे सतगुरु रविदास पातशाह। तुसीं जाणदे हो मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी की धर्म पत्नी लोना जी गुरु प्यारिओ 14 कला संपूर्ण सन, पर असी ऐसी माता नूं छड्ड के दूसरियां मगर घूमी जाइए फिर मूर्खता किहदी है? ये धरती तुहाडी मां है और इसे करके इस धरती नूं असी छड्ड रहे हैं, असी अपने वजूद नूं खो रहे हैं। पर गुरु प्यारी गल याद रखनी, आपां सारे मिल के सतगुरां दे चरनां दे विच असी कह दिंदे हैं कि महाराज नहीं आउंदे, पर आउंदे है, असी बुलाउंदे नहीं। दसो तो सही कित्थे नहीं आए? आपां तां कहंदे कि महाराज मैं बड़ियां धूफ बत्तियां कीतियां,
ਬੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਓ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਛੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਛੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਛੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ
कांची वाला आउंदा नहीं, फिर कहंदे कांची वाला आउंदा नहीं। दोष दिंदे हां असीं सतगुरां नूं, कहंदे कि जदों सतगुरु पातशाह आउंदे है फिर तो रहमतां ही रहमतां करदे चले जांदे। गुरु प्यारिओ जे किते भुलेखे नाल भी किसे पत्थर दे नाल भी चरण स्पर्श हो गया वो पत्थर भी पूजण योग बन जांदा। इसलिए सानू सतगुरां तो किरपा चाहिए है, वो किरपा मंगनी है। तो गुरु प्यारिओ मेरे सतगुरु रविदास पातशाह जी कहते कि जिस समय राजा बेर ने सेवा की तो संगतां ने अरदास की, कहते महाराज साडे एरिए विच साडे इस इलाके विच पानी की बहुत कमी है। तो सतगुरु पातशाह कहते ठीक है ये पानी की कमी भी परमात्मा दूर कर देंगे। कहते दूसरे दिन सवेरे उठे और सवेरे उठ के सतगुरु रविदास पातशाह जी उत्थों चाले पाउण लग पे। उस जगह तो चल के जदों इत्थे चरण छो प्राप्त गंगा जिथे वग रही है उस जगह ते पहुंच के एक पत्थर ते बैठ गए। तो की कहन लगे राजे नूं, कहंदे राजन अपने सहलकारां नूं कहो कि इत्थों ये पत्थर जिहड़ा हटा दिता जाए। हुण लगे सिपाही अहलकार जोर लाउण पर वो पत्थर नहीं उठिया। इधर सतगुरु पातशाह जी रहमत दे विच आए तो उन्होंने वो पत्थर नूं ठेडा मारिया, पैर का अंगूठा मारिया ते पैर के नाल ही वो पत्थर दूर कर दिता है कि उत्तों एक निर्मल धारा बन गई। जगत गुरु रविदास महाराज की। तो गुरु प्यारिओ वो पानी की निर्मल धारा जिहड़ी है उस वेले की वगदी हुई अज भी निरंतर वग रही है। आपां इत्थे आके अपने पाप कर्म धोंदे हां। आपां इस जगह ते आके एक गल होर देखो, कईयां दे चमड़ी दे रोग दूर नहीं होंदे, जदों इस निर्मल धारा दे नाल आके इशनान कर लैंदा है तो उहदे चमड़ी दे दुख भी दूर हो जाते हैं। इहदे अंदर एक शक्ति है, क्यों? क्योंकि इत्थे सतगुरां दे चरण प्राप्त है, चरण छो। सो गुरु प्यारिओ सतगुरु पातशाह जी की ये रहमत है कि अज आपां उस स्थान के उत्ते बैठे हाँ। आओ सब ने आपां ने मिल के इस जगह के उत्ते बैठ के एक ही कृपा करनी है। सब ने मिल के बोलना है एक शब्द। 2 मिनट क्योंकि हुण सतगुरु महाराज सतगुरु महाराज निरंजन दास जी भी इस जगह के उत्ते पहुँच चुके हैं। वो भी तुहाडे सामने जल्दी ही आप संगतां नूं दर्शन देंगे। इस करके सारे ही मिलके ये जो धारणा है मिलके पढ़नी है, क्योंकि जिन्ना भी ये संत मंडल है, ये संत महापुरुष बैठे हैं ना इस समय स्टेज के उत्ते, ये सारे ही सतगुरु रविदास महाराज जी के अंश अवतार हैं, क्योंकि उन्होंने सोच में समर्पित होकर चले हुए हैं। गुरु प्यारिओ तुसी अपने घर दे विच एक महापुरुष नूं बुला सकते हो, पर इत्थे तुहानूं दर्शन करने वास्ते देखो किन्ने महापुरुष इस समय प्रोवाइड है कि किन्ने महापुरुषों के तुसी दर्शन कर सकते हो। आओ एक शब्द है सारे ने मिलके बोलना है जी। कांची वाला मेरा आ गया कांची वाला, आ गया कांची वाला मेरा आ गया कांची वाला, आ गया कांची वाला मेरा आ गया कांची वाला, कांची वाला मेरा आ गया कांची वाला, प्यार दे विच हो के कल्ली मैं सजग ते कलम कल्ली, प्यार दे विच हो के कल्ली मैं सजग ते कलम कल्ली, तेरा दा रोग न्यारा मेरा आ गया कांची वाला, आ गया कांची वाला मेरा आ गया सतगुर प्यारा,
मन विच रीझां रखियां, चिर तो मन विच रीझां रखियां, खेद बिया न मेरा गुजारा, हुण आ गया कांची वाला, आ गया कांची वाला मेरा सतगुर प्यारा, आ गया कांची वाला मेरा सतगुर प्यारा। भाग सवल्ले हो गए मेरे, भाग सवल्ले हो गए मेरे, सतगुर चक्के आना मेरे, सतगुर चक्के आना मेरे, मैनू मिलिया दीन सहारा, मेरा आ गया कांची वाला, आ गया कांची वाला मेरा आ गया सतगुर प्यारा, मेरा आ गया सतगुर प्यारा। सालों सतपल सच सुनाया, सालों सतपल सच सुनाया, सतपल सच सुनाया, सतपल सच सुनाया, हर साई नाथ ना लिखवाया, 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 हुण जीण दा आया नजारा, हुण आ गया कांची वाला, आ गया कांची वाला मेरा आ गया सतगुर प्यारा, आ गया कांची वाला मेरा आ गया सतगुर प्यारा, आ गया कांची वाला मेरा आ गया सतगुर प्यारा, आ गया कांची वाला मेरा आ गया सतगुर प्यारा। जो बोले सो गुरु प्यारी साध संगत जी, इन्नी सेवा प्रवान करनी। कथा कीर्तन करते समय कोई भी गलत शब्द बोल हो गया होवे, कृपा करके माफ कर देना।